اگر آپ کو انگریزی فلمیں سمجھنے میں دشواری ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ہالی ووڈ فلم کا اختتام آپ کو چونکا دے گا۔ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کسی بھی فلم کی وضاحت سے محروم نہ۔ فلم کے شروع میں ایک چھوٹا بچہ ہے جو یتیم تھا۔ وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگا تو وہ اپنی دادی کے پاس آتا ہے۔ وہ ہیرو بوائے ہے، تاہم وہ اپنے والدین کی کمی محسوس کرتے ہوئے بے حس ہو جاتا تھا۔ ان کی والدہ بہت شفیق اور شفیق تھی۔ اس نے ہیرو بوائے کا بہترین خیال رکھا، بٹ ہیرو بوائے یہاں ایڈجسٹ نہیں ہوا۔ اس کی دادی اسے کہتی ہے میں تمہیں ایک پالتو جانور لاتی ہوں، اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کے ساتھ دوستی کریں، اس کے ساتھ اپنے راز بانٹیں۔ کئی ہفتوں کے اندر اس کی دادی اسے ایک چوہا دیتی ہے۔ ہیرو بوائے اس چوہے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا دادی، چوہے اپنی زندگی خوشی سے جیتے ہیں، وہ اپنے پنجروں میں کودتے اور کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک دن ہیرو بوائے اپنے کمرے میں اس چوہے کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایک باہر سے اسے گھور رہا ہے۔ اس کا نظارہ عجیب تھا۔ ہیرو بوائے کی دادی کی حالت بگڑ گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ ہیرو بوائے اسے کہتی ہے آؤ میرے بیٹے، چلو باہر چلتے ہیں۔ پھر وہ خریداری کے لیے ایک دکان پر جاتے ہیں۔ ایک عورت ہیرو بوائے کے پاس پہنچی جب وہ اپنی دادی سے تھوڑی دور چل رہا تھا۔ وہ واقعی تھی۔ وہ ہیرو بوائے کو چاکلیٹ پیش کرتی ہے۔ وہ وہی تھی جو اس دن ان کے گھر کو گھور رہی تھی۔ وہ ہیرو بوائے اسے کہتی ہے پیارے بچے یہاں آؤ۔ وہ اسے مسحور کر رہی تھی۔ اس کے پاس ایک پراسرار سانپ بھی تھا۔ اسی دوران ہیرو بوائے کی دادی اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ہیرو بوائے اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہیرو بوائے اپنی دادی سے کہتا ہے گھر آ رہا ہوں دادی۔ وہ عورت دکان میں پراسرار انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ مجھے زبردستی چاکلیٹ دے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میری بات سنو، اس کے پاس سانپ بھی تھا۔ اس کی دادی نے اس سے کہا اے میرے بیٹے، وہ ایک تھی، ہم تمہیں اجنبیوں کی دی ہوئی چیز کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسے نشہ کیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات آپ ایک کی طرف سے پیش کردہ چیز کیوں کھانا چاہیں گے؟ وہ یقینی طور پر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ آئیے میں آپ کے ساتھ اپنے بچپن کی کہانی شیئر کرتا ہوں۔ میری عمر 10 سال تھی۔ میرا ایک دوست بھی ہے، ہم اگلے دن جب میری ماں میرے بالوں کو پونی ٹیل میں ڈال رہی تھی، میرا دوست میری آنکھوں کے سامنے مرغی بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر لعنت کی گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جو چاکلیٹ کھائی اس میں کچھ تھا، اس لیے میں نے بچپن سے ہی چڑیلوں سے خود کو دور رکھا ہے۔ اگلی بار ان سے دور رہو، کچھ نہ لینا۔ جیسے ہی کوئی آپ کے پاس آئے مجھے مطلع کرے۔ ہیرو بوائے کی دادی اس سے کہتی ہیں میرے بیٹے ہم جلد ہی یہ جگہ چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا گھر چڑیلوں کی زد میں آ گیا ہے، اور وہ سب سے پہلے نچلے طبقے کے لوگوں پر حملہ کرتی ہے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک ہوٹل چل رہا تھا۔ دادی کی ایک کزن تھی جو اس ہوٹل کی ایگزیکٹو شیف تھی۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے مباشرت رکھتی تھی۔ اس سے یہ کہہ کر اس نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ محفوظ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے ہوٹل کا مینیجر ایک نیک دل آدمی تھا۔ دادی اور ہیرو بوائے اس ہوٹل میں شفٹ ہو گئے۔ وہ جہاں چاہیں جانے کے لیے آزاد ہیں، لیکن پھر کچھ عجیب ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں بہت سی چڑیلیں اس ہوٹل میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا ایک اجتماع ہے اور اس کے بعد انہیں ایک زبردست ڈنر کرنا ہے۔ تمام چڑیلیں بہت بے وقوف تھیں۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں، مینیجر سے ملتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا تاف جانتا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہماری میٹنگ کے لیے ایک ہال کا بندوبست کریں۔ دراصل ان کا منصوبہ ہے کہ وہ تمام بچوں کو اغوا کر لیں گے ورنہ ہم انہیں چاکلیٹ پیش کریں گے جس میں جادوئی فارمولا ہوگا۔ ان کو کھانے سے تمام بچے جانوروں میں تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے مطابق بچے بہت زیادہ بیمار پڑتے ہیں اور وہ اس دنیا میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس بیمار بچوں کو چیک کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے تو ہم سب بچوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ اب رات ہو رہی ہے اور ہیرو بوائے اپنی دادی سے باتیں کر رہا ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے۔ ہیرو بوائے پوچھتا ہے دادی چڑیلیں کیسی نظر آتی ہیں؟ اس کی دادی اسے بتاتی ہیں کہ اس کی انگلیاں لمبی ہیں، اس کے ناخن گندے ہیں اس لیے وہ دستانے پہنتے ہیں، وہ گنجے ہوتے ہیں اس لیے وہ انگا بڑی ٹوپی استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ہیرو بوائے بہت گھبرا گیا۔ جیسے جیسے طوفان برپا ہوتا ہے آخرکار صبح طلوع ہوتی ہے۔ ہیرو بوائے اداس تھا، چنانچہ وہ عظیم الشان ہال میں جاتا ہے اور اپنے ماؤس کو کھیلنے کے لیے لے جاتا ہے۔ وہاں تمام چڑیلیں جمع ہونے پہنچ جاتی ہے۔ خوف محسوس کرتے ہوئے ہیرو بوائے خود کو وہیں چھپا لیتا ہے۔ گرینڈ ہائی ڈائن اسے سونگھنا شروع کر دیتی ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتا تو وہ اپنی ملاقات شروع کرتی ہے۔
अब तमाम चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठी हुई थीं और उनके सामने ग्रैंड हाई था। वो उन्हें एक दवाइयां दिखाती है और कहती है कि ये एक जादुई फार्मूला है। अगर आप इसका एक कतरा कैंडी या चॉकलेट में डालते हैं तो कैंडी बच्चों को मुतासिर करते हुए जानवर में तब्दील हो जाएगी। इसका असर पड़ेगा। वो इसे मजीद तफसील से समझाने लगती है। फिर इसे दोबारा हीरो बुआए की खुशबू आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है। इस वक्त उसकी नाक और चेहरा मकरू और मुज़क्का खेज लग रहा था। आखिरकार वो ग्रैंड हाई डाइन थी। तो वो प्लेटफॉर्म को एक तरफ फेंक देती है, इसे उठा लेती है। लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं है। लेकिन इसके पीछे वेंटिलेटर की खिड़की थी जहां इसका सामना हीरो बुआए से होता है। वो इसे पकड़ने के लिए सितारों की तरफ बढ़ी, तभी एक बहुत बड़ा बच्चा वहां पहुंच गया जो वहां मौजूद मेहमानों में से एक का बेटा था। तमाम चुड़ैलें इसकी तरफ बढ़ रही हैं। इसे खाने का शौक था। चुनांचे चुड़ैलें ये देखकर मुतमईन हो जाती हैं कि हम इसे बगैर किसी मुश्किल के फंस सकते हैं, और वो इसे वही चॉकलेट पेश करते हैं जो उनकी तरफ से दवाई के साथ दी जाती है। बच्चा जल्दी से चॉकलेट खाकर एक छोटे चूहे में तब्दील हो जाता है। अब इस चूहे को देखकर चुड़ैलें खुद ही डरने लगे, और जिस तरह वो चूहे को अपनी एड़ियों तले कुचलने वाले हैं, इसी तरह अब हीरो बुआए ने चूहा वेंटिलेटर की खिड़की से बाहर निकल आया है। लेकिन हीरो बुआए ने ऐसा करने की गलती की, क्योंकि तमाम चुड़ैलें इसे देखकर इसे पकड़ लेती हैं। फिर उन्होंने इस जादुई माय का एक कतरा उसके कान में डाल दिया। नतीजे के तौर पर हीरो लड़का भी एक चूहे में बदल जाता है। अब भारी बच्चे और हीरो बुआए चूहे फौरन वहां से भाग जाते हैं। इसके साथ एक पालतू चूहा हीरो बुआए भी है। फिर पता चला वो एक छोटी सी लड़की थी, भी एक हिरन में तब्दील। वो थी इसे चॉकलेट पेश की। उन तीनों के दरमियान दोस्ती का अच्छा रिश्ता बनता है और कहते हैं कि हम उन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। हीरो बुआए फौरन अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरी दादी चुड़ैलों ने हमें चूहे बना दिया। वो कहती है, उन चुड़ैलों के साथ जहन्नम। वो मेरे बच्चों को चूहे बना देते हैं, मैं उनसे बदला लूंगा। अब हीरो बुआए अपनी दादी से कहता है, अहम बात यह है कि जिस जगह ये चुड़ैलें रहती हैं वहां की छत हमारे कमरे की छत से नजर आती है। फिर दादी ने एक मंसूबा बनाया और वो कहती है, मैं एक जुराब बना रही हूं, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी, तुम्हें इसमें डाल दूंगी। आप उसके जादुई माय को चोरी करके ऊपर जा सकते हैं और मैं आपकी इस्लाह करूंगा। तो वो भी ऐसा ही करती है। दादी अपने पोते हीरो बुआए को इस जुराब में डालती हैं, फिर वो उतारने लगता है। हीरो बुआए इसे डरा रहा है, लेकिन वो वहां नहीं है। दवाइयां उठाकर हीरो बुआए जुराब में वापस आता है। वो इसकी एक झलक दिखाती है जब इसकी दादी इस जुराब को उतार रही है, और वो जुराब को मजबूती से थामे हुए है। फिर हीरो बुआए की दादी कहती है, छोड़ो, ये सिर्फ इस वक्त हुआ जब मैं इस जुराब को बना रहा था, तो मैं इसे दोबारा खींच रहा हूं। वो कहती है, कैसा है? फिर वो जुराब का मुआयना करने वाली है। इसे देखकर वो हीरो बुआए के चूहे को मार सकती है। इसी दौरान मैनेजर वहां पहुंच जाता है तो वो जुराब को छोड़ देती है। अब दादी को वो दवा ऊपर से मिल गई थी। इसने माय प्लेट में डाला और एक एक करके 3 चूहे रखे। लेकिन ये क्या है? वो जादुई माय काम नहीं करता, क्योंकि वो दवा इंसान को जानवर नहीं बना सकती बल्कि जानवर को इंसान बना सकती है। हीरो बुआए कहता है, दादी हम बाजियाब नहीं हो सकते, क्यों ना हम इस दवाई को चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो वो लेने जा रहे हैं। वैसे आप किचन में जा सकते हैं। दादी कहती है, वाह बच्चों, क्या शानदार आइडिया आपके साथ आया है। फिर वो उन 3 चूहों को अपने थैले में लेकर किचन में चली गई जहां चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा है, और वो दवा इसमें डाल देती है। फिर होटल के चरनी का सामना दादी से होता है। इसने पूछा, क्या ये चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये आपके पालतू जानवर हैं तो उन्हें किचन में नहीं ले जाना चाहिए, तुमने एक गंदा काम किया है। तब दादी कहती हैं, ये मेरे चूहे नहीं हैं, सब चेक करो। दादी ने इन चूहों को अपने थैले के कोने में छुपा रखा है। मैनेजर को अपने कमरे और सामान के मुआयने के दौरान कोई चूहा नहीं मिला, इसलिए इसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तब दादी कहती है, मैं आपसे शिकायत करूंगा। आपकी जुर्रत कैसे हुई बगैर किसी वजह के किसी का कमरा चेक करने की? अब देखो, पुलिस आपके होटल को सेल कर देगी। वो मैनेजर मुकद्दस है और कहता है कि ये खातून, हौसला रखें। आखिर क्या हुआ? आप मेरी तरफ से रात का खाना खा सकते हैं, मैं आपसे मुआफी चाहता हूं। फिर दादी अपने हवाई जहाज में कामयाब हो जाती हैं, हालांकि उन्हें खाने को भी मिलता है। फिर उन चुड़ैलों के खाने का वक्त भी करीब आ रहा है। उन चुड़ैलों ने वो सूप सिर्फ अपने लिए तैयार किया था, और ये अच्छा होने वाला था कि ये सूप खाने के बाद वो हिरन में बदल जाएंगे। पहली नजर में तमाम चुड़ैलें सूप लेते ही चूहों में तब्दील हो जाती है। दादी उन्हें देखकर खुशी महसूस करता है, और ये एक खुशगवार नजारा भी दे रहा था। दादी खुद और होटल का सारा अमला चूहों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ग्रैंड हाई डाइन उन्हें अभी तक सूप का जायका नहीं चखा था। नतीजे के तौर पर वो एक डव में तब्दील नहीं होता। फिर 3 चूहों ने जाल बिछा दिया।
वो इसकी उंगली को फंसाते हैं तो वो चीखने लगती है, तो उन्होंने फौरन वो दवा उसके मुंह में डाल दी। अब वो एक डव के पास भी चली गई थी जो दूसरे चूहों से बड़ी थी, और वो इसे शीशे के कप में बांध देते हैं। दादी फिर बली को पिंजरे के सामने रख देती है, और कौन जानता है कि बली इस चूहे पर हमला करते हुए इसे खा सकती है या मार सकती है। अब दादी बहुत पुरजोश हैं, उन्होंने तीनों चूहों को अपने थैले में डाल दिया। वो इस होटल से बाहर आता है क्योंकि अब इसे चुड़ैलों से कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी रह सकता है। बाहर से ये जाहिर है कि एक भारी बच्चे के वालिदैन इंतहाई परेशान हैं। हमारा बेटा कहाँ गया? लेकिन इसकी माँ बहुत गैर फैसलाकुन थी। इसने कभी अपने बेटे से मोहब्बत नहीं की, और जब इसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा होता है तो वो इंतहाई खौफजदा होती है और कहती है, इसे अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखो, मैं इसे लेने पर गौर नहीं करूंगा। चूहा भी कहता है, ये ठीक है, मुझे अपने दोस्त मिल गए, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए शुक्रगुजार हूं। अब दादी अपने साथ 3 चूहे लाती है और उन्हें खाना फराहम करता है। 3 चूहे अपनी जिंदगी और अपने नए दोस्तों से खुश थे, और दादी ने इसका पूरा ख्याल रखा। दिलचस्प हकीकत ये थी कि इनमें से 3 चूहे कभी भी इंसानों में तब्दील नहीं होना चाहते थे। वो भागते कूदते खेलते और लुत्फ अंदोज होते, और दादी ने उन्हें देखकर इत्मीनान महसूस किया। फिल्म यहाँ एक पुरजोश इख्तिताम के साथ खत्म होती है। उम्मीद है आपका वक्त अच्छा गुजरा है। देखने के लिए शुक्रिया।